She first thinks that he is a gardener. पहली बार जब प्रभु मसीह से उसकी बात होती है तो वह सोचती है कि शायद यह बगीचे का मालिक होगा, और वह उससे पूछती है कि कृपया मुझे बता दीजिए कि आपने प्रभु मसीह के देह को कहाँ रख दिया है. And she asked the Lord Jesus Christ, thinking that he is a gardener, that please tell me where you have laid the body of Sri Lord Jesus Christ. And Jesus says to her, Mary, और प्रभु मसीह उससे कहते हैं मरियम. And that time she realizes the person who is standing is none other but Lord Jesus Christ. और उस समय वह समझती है कि जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा है वह और कोई नहीं प्रभु श्री यीशु मसीह स्वयं हैं. And that time she fully believes that yes, the Lord Jesus Christ is risen. Yes, he is indeed risen. और उस समय वह पूरा भरोसा कर पाती है कि प्रभु मसीह सचमुच जी उठे हैं, सचमुच प्रभु मसीह जिंदा हो चुके हैं. And in all this process, her faith becomes firm that yes, the Lord Jesus Christ is indeed risen. और इन सारी चीजों में कितनी देर के बाद उसका विश्वास मजबूत हो जाता है कि हाँ प्रभु मसीह सचमुच जी उठे हैं. If you look back, when we sit here, we think that should she not believe it in the very first time an angel said to her. और जब हम आज मुड़ के देखते हैं तो हम सोच सकते हैं क्या उसे पहली बार जब स्वर्गदूत ने बता दिया था तो विश्वास नहीं कर लेना था? जब उसने अंदर जाके देखा प्रभु मसीह की देह वहां नहीं थी तो विश्वास नहीं कर लेना था? When she went into the tomb and looked that Jesus' body is not there, should she not have believed that time? When she came out of the tomb and the two angels were there and they told her again that Jesus is not here, he is resurrected, should she not have believed them? और जब वह वापस कब्र में से बाहर आई और दो स्वर्गदूतों को उसने देखा और उन स्वर्गदूतों ने जब उससे कहा कि प्रभु मसीह जी उठे हैं, वे यहाँ नहीं हैं, क्या उसे उस समय विश्वास नहीं कर लेना था? And when she was going on the way to tell disciples what she has seen, when Jesus appeared, should she not have believed on that Jesus is already resurrected? और जब वो वापस जा रही थी प्रभु मसीह के शिष्यों को बताने के लिए, उस समय प्रभु मसीह दिखाई दिए, क्या उसे उस समय भी विश्वास नहीं कर लेना था? Yes, in all the situations she could have believed, but she wanted to make sure that what she is hearing, what she is seeing is true. वह उसे विश्वास कर लेना था, किंतु वह इस बात को मजबूत करना चाहती थी कि जो वह देख रही है, जो वह सुन रही है, वह सचमुच सही है. वह एक सपना नहीं देख रही है. She is not dreaming something because it was very difficult to believe in it. She has seen the Lord Jesus Christ dying on that cross 3 days back. और 3 दिन पहले उसने अपनी आंखों से प्रभु मसीह को उस क्रूस पर मरते हुए देखा था. उसने अपनी आंखों से इस बात को देखा था कि प्रभु मसीह सचमुच मर चुके हैं. She has seen it from her own eyes that Lord Jesus Christ has really died. And after seeing a person is really dead, it's impossible to believe that that person is alive today. एक बार एक व्यक्ति को मर चुका है देख लेने के बाद तीसरे दिन बाद यह बहुत मुश्किल है यह समझ पाना कि वो व्यक्ति जीवित है, क्योंकि एक व्यक्ति मर चुका, वह जा चुका, वह वापस नहीं आता. Because a person is dead, he is gone, he doesn't come back. So it was very difficult to believe that he is alive. और यह इसलिए बहुत मुश्किल था कि यह इस बात पर विश्वास कर पाना कि वह सचमुच जीवित हैं. And in all that process, finally she comes to the conclusion that he is indeed alive. और इन सारी चीजों में वह इस बात पर पक्का भरोसा कर पाती है कि प्रभु मसीह सचमुच जीवित हैं, क्योंकि उसने प्रभु मसीह को स्वयं अपनी आंखों से देख लिया था, प्रभु मसीह से बात कर ली थी. Because she has seen Lord Jesus Christ from her own eyes. She has talked to the Lord Jesus Christ and she believed in this firmly. और उसने इस बात पर पक्का भरोसा किया. Not only she, not only other women, but many other people have seen Lord Jesus Christ. Even more than 500 people had seen Lord Jesus Christ resurrected. And
Even after that, millions of people have seen Lord Jesus Christ since then, even till today. और केवल ये नहीं, केवल उसने नहीं, बल्कि और भी स्त्रियों ने और भी लोगों ने, बल्कि 500 से ज़्यादा लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जिंदा वापस जीवित देखा। और न केवल यह, उस समय से लेकर अभी तक लाखों लोग प्रभु यीशु मसीह को जीवित देख चुके हैं। सो द रिसरेक्शन इज ट्रू। और इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह का वापस पुनरुत्थान है, जो वापस जीवित होना है, वह सही है। आई विल कंक्लूड विथ वन मोर स्टोरी। मैं एक और कहानी के साथ इसे अंत करूंगा। दैट हैपेंड इन द लैंड ऑफ इंडिया। और यह जो घटना है, यह अपने भारत देश में हुई। वेयर ए पर्सन, हिज नेम इज सुंदर सिंह, ही इज नोन एज साधु सुंदर सिंह लेटर। और एक व्यक्ति जिसका नाम सुंदर सिंह था, जो बाद में साधु सुंदर सिंह के रूप से जाना जाता है। यह व्यक्ति बचपन से बड़े धार्मिक रूप से पला बड़ा। एंड दिस पर्सन ग्रू अप इन अ वेरी रिलीजियस एनवायरमेंट। उनकी माता जी उन्हें हर हफ्ते मंदिर गुरुद्वारे ले जाया करती थी। एंड हिज मदर यूज्ड टू टेक हिम टू टेम्पल एंड टू गुरुद्वारा एवरी वीक। एंड every week she used to take him to a very renowned sadhu who used to live in jungle. और हर हफ्ते की माता जी इन्हें जंगल में जो एक बहुत ही प्रख्यात जो साधु थे, उनके पास ले जाया करती थी। And she taught him very much into religion. और उन्हें अपने सारे धार्मिक रीति रिवाजों को बहुत अच्छी रीति से सिखाया। And he was growing religiously. और वे धार्मिक रूप से पल बढ़ रहे थे। And he was doing fine. और वे सब कुछ सही चल रहे थे। He was from a very wealthy family. और वे बहुत धनवान परिवार से थे, तो पैसों की कोई कमी नहीं थी। He didn't have any lack of money. At the age of 14, जब वे 14 साल के थे, he lost his mother. उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। और उनके लिए उनकी माँ उनकी जिंदगी में सब कुछ थी। For him, his mother was everything for him. He loved his mother very much. वे अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। और ऐसी परिस्थिति में वह दुख उनके लिए सहने से बाहर था। And this pain of losing his mother was very painful for him. He could not tolerate it. वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। And he began to become violent. और वे बहुत ज्यादा violent होते चले जा रहे थे। And he began to torture people. He began to torture people who believed in Sri Lord Jesus Christ. और वे उन लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे सताने लगे, और भी दूसरे लोगों को सताने लगे। One day he called all his friends and his dad was also there. एक दिन उन्होंने अपने पिता को और अपने मित्रों को वहां पर बुलाया, इकट्ठा किया। एंड ही टोर बाइबल पेज बाय पेज एंड ही बर्न्ड इट। और उन्होंने बाइबल के एक एक पन्ने फाड़कर उसे जलाना शुरू कर दिया। 3 days later, 3 दिन बाद उन्होंने इस बात का निर्णय किया कि अब मैं आत्महत्या कर लूंगा, मेरे लिए इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं है। He decided that he is going to commit suicide. There is no point in living in this world. और तीसरे दिन जब वे अपने कमरे में थे, उन्होंने सोचा कि एक बार और प्रार्थना कर ली जाए कि अगर कोई सच्चा परमेश्वर है। And third day he decided when he was in the room that he is going to pray one more time if there is any true God. And he prayed that if there is any true God, please show up.